हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं तो नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, द जेनेटिकल heredity of material. That is the most important topic here, DNA. The chemical nature of DNA is the deoxyribonucleic acid here. The DNA is the polynucleotides and macromolecules. Macro means large. The made of units called to the nucleotides, and each nucleotide consists of 3 subunits. The first is a pentose, 5 carbon sugar called to deoxyribose, and 4 nitrogen base adenines and guanines are the pyrimidine base on the thiamines. T and cytosines are bromide to the base. There is the most important here is adenines A, guanines B, G, and thiamines T, and the cytosine C. There is a make on the each other, and a phosphate group of P4 is positioned on the sugar. Here show in this diagram there is a bacteriophages radioactives of 35S level protein capsule. The radioactive 35PS level DNA is here, and the first stage is infection, and this goes with the second step here. There is bleeding. So there is second step is bleeding, and third is a configurations. Configurations here there is third, and there is hypothesis case of experiment. There is no radioactive detect in the cells. There is a third stage is a contrifugations, and the no radioactives is the detect in the supplementant. There is a very important fact on the here. Here to show there is the most important structure is the component of nucleoside and nucleotide here. There is a base and the sugar is a nucleosides, but base plus sugar plus phosphate is a nucleotides. There is a most important structure for the exam view on the +1 and +2 students CBSE. There is a asking to many times this question, a component of nucleosides and nucleotides. The base and sugar is the nucleosides, and the base plus sugar plus phosphates is the formation of nucleotides. So there are 4 nucleotides in a DNA formed to sugar and nitrogen is base and phosphate. There is a curve follows as a rule here. The 4 nucleotides are not present in equal amount in the DNA molecules, but their amount of pyridines plus A plus G, and there is a bromidines is a T plus G C is a way equal. In other word is a A is equal to T and G is equal to C. This is called the Crafts rule. There is a most important rule for the DNA structure. तो यहाँ पर जो है डीएनए की संरचना और आनुवंशिक पदार्थों के विषय में हमने जानना है। डीएनए की संरचना जो होती है आपने देखा भी होगा कई जगहों पे। तो ये डीएनए की संरचना के बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि डीएनए होती क्या है। कहते हैं डीएनए एक जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स एक विधाकार अणु है जो कि न्यूक्लियोटाइड्स इकाइयों से मिलकर बना हुआ होता है। यानी आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड्स इकाई यूनिट से मिलकर बना होता है डीएनए, इसलिए इसको न्यूक्लियोटाइड्स भी कहते हैं। कहते हैं प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड की 3 उप इकाई होती है। तो एक जो होती है एक पेटल शर्करा यानी 5 कार्बन शर्करा जिसे जो है डीऑक्सीराइबोज कहते हैं से बना हुआ होता है, और 4 इसमें नाइट्रोजन बेस होते हैं जिसको हम एडेनिन्स, ग्वालिन्स और प्यूरिन्स या थैलिन्स कहते हैं या साइटोसिन कहते हैं। इसमें जो होता है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ए जो होता है जी के साथ जुड़ता है और टी जो होता है सी के साथ इक्वल दिखाता है। तो ये जो होता है आप डीएनए के जो बीच के स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें ये आपको नजर आएगी। ठीक है, कहते हैं शर्करा में स्थित फास्फोरेट जो P4 होती है तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। अगर बात किया जाए तो इसमें एक बेस और शर्करा मिलकर जो है न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एक बेस और ये शर्करा मिलकर जो है न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। एक फास्फेट समूह के इसके साथ संयुक्त होने जाने से न्यूक्लियोटाइड्स बन जाता है। जैसे बेस प्लस शर्करा न्यूक्लियोटाइड्स बनाता है और बेस प्लस शर्करा प्लस फास्फेट न्यूक्लियोटाइड्स बनाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहती है डीएनए स्ट्रक्चर के लिए। इस प्रकार डीएनए में शर्करा, नाइट्रोजन बेस या फास्फोरस में निर्मित 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जैसे कि आप इस चित्र में भी देख सकते हो। इसमें साफ क्रम में दिखाया गया है कि बैक्टीरियोफेजेस दिखाए गए हैं दोनों साइड। इसमें रेडियोधर्मी S35 निश्चित प्रोटीन कैप्सूल दिखाया गया है और रेडियोधर्मी 30P जो है चिन्हित प्रोटीन कैप्सूल दिखाया गया है। सबसे पहले स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे तो ये स्ट्रक्चर जो है संक्रमित है। ठीक है, संक्रमित दिखाने के लिए देखो ब्लैक ब्लैक आपको दिखेंगे, नजर आएंगे, इसका मतलब ये जो है संक्रमित है।
अगर आप दूसरा स्टेज देखोगे जिसमें ब्लेडिंग दिखाया गया है, तो इसमें ब्लेडिंग दिखा के आपको संरचना को दर्शाया गया है। लेकिन वही थर्ड स्टेज में आप देखोगे जो एक संरचना का रूप धारण कर लिया है, इसमें कोशिकाओं में जो है कोई रेडियोधर्मी यानी 335S नहीं पाया गया है, लेकिन जो है कोशिकाओं में जो है 32P पाया गया। तो इस प्रकार जो है आपको सुपरीमेंटन्स में रेडियोधर्मी 35 पाया गया और एल्बिट में कोई रेडियोधर्मी नहीं पाया गया। तो हर्शो और द चेज का ये प्रयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट था। लेकिन इसको हम रासायनिक समीकरण में कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स के भाग दिखाए गए हैं, जिसमें आपको दिखाया गया कि क्षार और शकरा मिलके जो है न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करता है। अगर क्षार, शकरा और फास्फेट मिल जाए तो न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण होता है। इसे जो है वेनेजिन्स में दिखाया गया है कि शकरा फास्फेट समूह किस प्रकार बनाए जा सकते हैं और किस प्रकार आप जो है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स को आप दर्शा सकते हो। तो कई बार ये एग्जाम में आया है क्वेश्चन, तो इसकी स्ट्रक्चर जो है आप जरूर 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेना, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि जो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं किस प्रकार उनका निर्माण होता है और इसके लिए जो है केमिकल फॉर रासायनिक समीकरण क्या है। तो ये आपके समक्ष प्रस्तुत था।